Cosmo People, helping change. Celeb Rise, Talent Management and Grooming. Hi friends, welcome to Ticket to Bollywood, session number 10, Navigating Challenges and Getting Assignments. मुझे पता है कि ये सेशन के लिए जितने भी एस्पिरेंट लोग हैं मॉडलिंग में, एक्टिंग में या फिल्म्स में काम करना चाहते हैं या बॉलीवुड इंडस्ट्री में आना चाहते हैं, उनके लिए ये सेशन काफी मायने रखेगा। और डेफिनेटली ये सेशन के लिए काफी ज्यादा रजिस्ट्रेशंस भी आए, क्योंकि हर किसी को या जितने भी लोग हैं जिनको बॉलीवुड में इंडस्ट्री में करियर करना है, उनके लिए सबसे इम्पोर्टेंट और चैलेंजिंग जो चीज होती है वो है असाइनमेंट मिलना, और वो भी कमर्शियल और पेड असाइनमेंट्स मिलना। तो ये सेशन में हम लोग इस चीज के बारे में जानेंगे। ये टॉपिक के अंदर हम लोग क्या देखेंगे? नेविगेट द चैलेंजेस ऑफ द एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री विद सीजन प्रोफेशनल्स, learn strategies to secure assignments, overcome hurdles, and build a successful career while thriving in a competitive landscape. So we have two beautiful guests with us and who are working into the industry. It's been a while. So I would like to introduce Dimple Solanki. She is a casting director and it's been 9 years she's into film industry. She came with a dream to be an actor, but it's all about destiny that she became a casting director. Before casting, she was into assistant direction and production, working with big brands. She did casting for music videos, Aako Se Batana, Ashko, Psycho, etc. She did freelancing, casting for movies, web series, advertisements. Being at the age of 24, the journey to be casting director was really beautiful. But she's not gonna stop herself here because there is many more things to achieve in her life, and she has to got the great opportunity to share her journey and guidance to all of you. So let's welcome Dimple Solanki. Welcome, Hello, Dimple. hello. We have another guest with us. She is also casting director from Ekdanta Films. They have done lot many bigger projects, just like for the line production and the casting department as well. I'm really closely associated with them. काफी सारे प्रोजेक्ट्स उन्होंने इंडस्ट्री से, मतलब मेन स्ट्रीम इंडस्ट्री से सेकेंड टीयर सिटी में लेके आना, उसको सक्सेसफुली एग्जीक्यूट करके डिलीवर करना, ये काफी चैलेंजिंग होता है. सो आई रियली ग्रेटफुल टू द एकदंत फिल्म्स टीम कि उनके जो एफर्ट्स सेकंड
टीयर जो सिटीज होते हैं जहाँ पे ये सारी चीजों का एक तो नॉलेज नहीं होता है या फिर अपॉर्चुनिटीज भी नहीं होते हैं। अगर देखा जाए किसी को भी बॉलीवुड में करियर करना है तो यू नीड टू गो टू द मुंबई, यू नीड टू गो टू द metro cities if you really want to get into the industry. But the institution or the organization like Ekdanta Films, they are putting efforts to get the things done into tier 2 cities, tier 1 cities as well. So that is very applauding and very appreciating to the Ekdanta Films and Pallavi, who is doing fantastic job into her casting direction. The projects which we I have seen personally is like Netflix series, The Fame Game. The production has been done into tier 1 cities. Recently, they have done upcoming project. The director is Gully Boys director. Then there are n number of Z5 series, Netflix series, and many more series and the feature films. The casting or the second casting or the support casting is being done by Ekdanta Films, and that too from tier 1 and tier 2 cities. So that is very applauding. So I would love to welcome Pallavi to this session. Welcome Pallavi. थैंक यू रिमय। या हम लोग अभी नेक्स्ट सेशन में जाएंगे। आई वांट कि आप आपका थोड़ा सा जर्नी हमारे साथ शेयर करें सो दैट ऑडियंस कैन अंडरस्टैंड द बेटर थिंग्स अबाउट यू, योर एक्टिविटीज एंड हाउ यू आर वर्किंग इनटू द इंडस्ट्री। सो थोड़ा सा एक लाइमलाइट अगर आप आपके जर्नी के बारे में दोगे तो ऑडियंस के लिए हेल्पफुल होगा। आई लाइक टू इनवाइट डिम्पल फर्स्ट एंड देन विल टॉक टू द पल्लवी। Okay, so I didn't have an aim to be a casting person. So I joined institute. I was learning acting. I was doing a lot of things because I'm a person who needs to explore a lot of things and all. So my first great work I did with was Ekta Kapoor. I was in AD in Hum web series, but I was a student at that time because my age was not that much so much. So I wanted to explore more. So then I did AD with Anurag Kashyap. अगर पॉसिबल हुआ तो हिंदी में बात कीजिए क्योंकि ऑडियंस से मैसेज आ रहा है कि शी कैन बी मोर फ्रेंडली बिकॉज कंफर्टेबल भी होगा और इंडस्ट्री में काफी सारे लोग हैं जो हाँ, पता हिंदी है। में जानना चाहेंगे। तो उसके बाद मैंने अनुराग कश्यप के साथ सर के साथ काम किया एज एन एडी। बट उसके बाद में एक थोड़ा सा ब्रेक आ गया था बिकॉज मेरे एग्जाम्स बहुत सर पे थे और मेरे से बहुत दोनों भी मैनेज नहीं हो रहा था। एंड उसके बाद आई गेव अ थॉट कि मुझे एडी नहीं करना है बिकॉज इट इज़ मेरे जोन में नहीं है, मुझे चीज़ें एक्सप्लोर करने नहीं मिल रही उतनी। देन आई वेंट इन टू प्रोडक्शन। प्रोडक्शन में भी वही चीज़ें हुआ, मुझसे नहीं हो रही थी। एंड देन आई वॉज अ कास्टिंग असिस्टेंट इन दिस मूवी पद्मावत, श्रुति महाजन मैम के साथ। उनके बाद मैं मुकेश छाबड़ा सर के साथ भी असिस्टेंट थी। तो जब मैंने कास्टिंग असिस्टेंट की तभी मुझे ऐसा लग रहा था ना, जब मैं ऑडिशंस लेती थी ना, तो मुझे ऐसा लगता था कि मैं मेरे एक्टिंग को ज़्यादा एक्सप्लोर कर पा रही हूँ। सो आई वॉज एबल टू लर्न लॉट ऑफ थिंग्स। एंड जब वो कास्टिंग होते गया एंड देन आई डेंट स्टॉप, मैं फिर कास्टिंग में ही लग गई। बट देन एक मोमेंट के बाद ऐसा हुआ था ना कि स्टिल मेरी एक्टिंग चल रही थी। सो आई वॉज डूइंग थिएटर ऑल्सो साइड बाय साइड। तो मुझे थिएटर में नेशनल अवार्ड भी मिला था। फिर मैंने बहुत सारे फिल्म फेस्टिवल्स के लिए भी कास्टिंग की थी जिसके लिए भी मुझे कास्टिंग डायरेक्टर का अवार्ड मिला। बट राइट नाउ आई एम स्टिल डूइंग कास्टिंग। बट कास्टिंग के अलावा भी मैंने मेरी एक वेब सीरीज़ की जो स्टोरी थी वो भी मैंने नेटफ्लिक्स के कंटेंट अप्रूवल के लिए डाली है। सो आई होप मेरी ये जर्नी यहाँ पे स्टॉप ना हो और मैं कास्टिंग डायरेक्टर से ज़्यादा एक ऊपर पोजीशन में चले जाऊँ। So that's a short journey मेरा। यस यस, मतलब सबसे इंटरेस्टिंग मुझे क्या लगा आपके जर्नी में कि मतलब काफी बार ये देखा जाता है कि पीपल कम विद अ ड्रीम कि एक्टर बनना है या फिर और कुछ करना है, बट दे समहाउ they gets the opportunity or somehow they get the, I don't know whether it's right word or not, कि enlightenment होता है या फिर समझ में आता है, रियलाइजेशन होता है, सेल्फ प्रोक्योरमेंट होता है कि भाई ठीक है मैं एक्टर बनना चाहता हूँ या बननी चाहती हूँ लेकिन मुझे कुछ ऐसे भी अपॉर्चुनिटीज है फिल्म इंडस्ट्री में जिसके साथ में अपने करियर को परसू कर सकूं। मुझे ऐसा लगता है ना कि जिसमें एक्टिंग की स्किल्स होती है या क्वालिटी होती है ना, दे आर वेरी गुड इन कन्वर्सेशन एंड कन्विंसिंग पावर बहुत अच्छा होता है उनका। तो मेरा कन्विंसिंग पावर बहुत अच्छा था, ये मुझे कॉम्प्लीमेंट मिला था एकता मैम से।
तो आई वाज़ उनने बोला था, तो मैंने ना कॉन्टैक्ट बिल्ड करना स्टार्ट किया इंडस्ट्री में। मतलब 24 के एज में आज मेरे पास, मतलब मुझे बोलो ना कि मुझे ये मॉडल चाहिए या ये सेलिब्रिटी चाहिए, सो आई हैव दैट पावर कि मैं किसी का भी कॉन्टैक्ट निकाल सकती हूँ, कि मैंने इतनी जर्नी में बहुत अच्छे कॉन्टैक्ट्स बनाए हैं मेरे। एग्जैक्टली वही इंपॉर्टेंट होता है कि आप आपके स्ट्रेंथ के ऊपर भी काम कीजिए। डेफिनेटली आपके जो वीकनेस होते हैं उसके ऊपर आपको इम्प्रूव करना है, ये करना है। लेकिन अगर आप स्ट्रेंथ के साथ अगर एंटर करते हो तो लोगों से अप्रिशिएशन मिलना और कमर्शियली उसको कन्वर्ट करना काफी इजी होता है। सो लोगों को या एस्पिरेंट लोगों को भी यही सजेशंस होंगे कि डेफिनेटली आप शायद एक्टर बनना चाहते हो, राइटर बनना चाहते हो, डायरेक्टर बनना चाहते हो, और काफी डिफिकल्ट है इंडस्ट्री में सस्टेन करियर डेवलप करना। इट इज वेरी डिफिकल्ट एंड दैट टू मेन स्ट्रीम एक्टर्स के लिए भी, कि जो साइड वाइज कुछ जॉब कर रहे हैं, कुछ बिजनेस कर रहे हैं, एंड इनटू एक्टिंग दैट इज द सेकंड प्रोफेशन एज वेल, या फिर फर्स्ट प्रोफेशन एक्टिंग रख के बैकअप में बिजनेस या कोई और जॉब के अपॉर्चुनिटीज वो देखते हैं। सो इसीलिए अगर आप और दो तीन चीजें अगर करते हो फिल्म इंडस्ट्री में और वो आपका पैशन है, वो फील्ड वो इंडस्ट्री आपसे रिलेट करती है, रिलेवेंट है, तो वो भी आपको काफी कुछ देके जाएगा जो आपको जिस सेगमेंट के लिए परस्यू करना करे उसके लिए हेल्प करेगा। तो थैंक यू सो मच डिम्पल। मैं पल्लवी की तरफ आना चाहूंगा। पल्लवी, यही सवाल है कि आपका थोड़ा सा जर्नी एलैबोरेट कीजिए कि किस टाइप्स का जर्नी, कहाँ से चालू किया, कैसे चालू किया, किस टाइप्स के प्रोजेक्ट्स हुए आपके अभी तक, और अभी हाल फिलहाल करंट प्रोजेक्ट्स पे क्या चल रहा है। ओवर टू यू पल्लवी। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू रिमय, आपने इतने अच्छे सेशन में मुझे ज्वाइन किया। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि इसके ऊपर आप बात भी कर रहे हो, आप सवाल भी पूछ रहे हो, आप लोगों को इंक्लूड भी कर रहे हो। ज़्यादातर कैसा होता है, जैसे मैं एक सिटी से बिलोंग कर रही हूँ, मेरी स्कूलिंग अपब्रिंगिंग सब यहाँ पे हुई है, तो मुझे अपने ड्रीम को चेस करने के लिए बहुत टाइम लगा। जैसे मिडिल क्लास फैमिली है, मेरी भी फैमिली है, तो पहले मुझे एजुकेशन कंप्लीट करना पड़ा। मुझे लाइफ में एक अपॉर्चुनिटी मिली थी, मैं एक डांसिंग ग्रुप में थी जिसके थ्रू हमारे सिटी में खाकी फिल्म की शूटिंग हो रही थी और मुझे डांसर के तौर पे वहाँ पे रिप्रेजेंट करना था। और वहाँ पे कुछ इंसिडेंट्स हो गया कि मुझे ऐश्वर्या जी के बैकग्राउंड में उनकी ड्यूब का रोल करने को मिला था। तो वहाँ से मेरी एक्चुअल नहीं बट छोटी मोटी जर्नी स्टार्ट हुई थी। स्कूल के दौरान मैंने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स किए थे, जैसे थिएटर हो गए, वन एक्ट प्ले हो गए, उसमें मुझे काफ़ी सारे अवार्ड्स मिले थे। तब मुझे अच्छा लगा कि यार एक्टिंग के साथ साथ हम लोग ये भी अपना एक पैंतरा अगर अप्लाई करें, इम्प्रूव करें अपने आप को एक्टर साबित करने के लिए, तो डेफिनेटली मैं इस फील्ड में करियर कर सकती हूँ। और फिर धीरे धीरे मैंने छोटी छोटी सीरियल्स में काम करना शुरू किया, एड फिल्म्स में काम करना शुरू किया, और ऐसी मेरी जर्नी शुरू हुई। लेकिन इसके साथ जिस बात के ऊपर हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं वो है कास्टिंग। तो मुझे इस तरीके से मिली है कि जैसे एक प्रोजेक्ट चल रहा था नासिक में एक अच्छे न्यूज़ चैनल के लिए, तो उसके लिए कुछ कास्टिंग के लिए रिक्वायरमेंट थी। जो हमारे कोई प्रोजेक्ट के हेड थे उनको वो बात समझ में नहीं आ रही थी। तो एक एक्टर होने के साथ साथ आपको पता है कि बैक स्टेज में क्या क्या होता है, क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है, किन एस्पेक्ट्स के ऊपर अपना वो प्रोजेक्ट चलता रहता है। तो हम लोगों को ये बात समझने में ज़्यादा टाइम नहीं लगी कि उनकी रिक्वायरमेंट क्या है। तो मैंने डेफिनेटली उनको कहा कि मेरे पास ये सारी जो आप रिक्वायरमेंट बोल रहे हो वो है, अगर आपको चाहिए हो तो मैं उनका एक वेल प्रेजेंटेशन आपको दे सकती हूँ। उन्होंने मुझे कुछ वक्त दिया, तो मैंने अपने सिटी में जो भी मेरे अच्छे कलाकार थे, मेरे ग्रुप के कुछ लोग थे, उनको एकजुट करके उनके अच्छे फोटोग्राफ्स निकाले, उस कैरेक्टर के हिसाब से उनके छोटे छोटे वीडियोस बनाए और उनको प्रेजेंट किए। वो कैरेक्टर उनको इतने अच्छे लगे कि उन्होंने एक्चुअल स्क्रिप्ट में जो कैरेक्टर नहीं थे वो भी उसमें इन्वॉल्व किए, और वो एक छोटी सी एवी थी, उसमें ये सारे कैरेक्टर्स उन्होंने उस स्क्रिप्ट के अलावा भी दिखाया है जो आज भी उस एड में प्रेजेंट है। और इस तरीके से मेरी कास्टिंग की जर्नी शुरू हुई है। इसके अलावा अगर आप बात करेंगे रीसेंट प्रोजेक्ट चल रहा है, तो यस, अभी हमने टाइगर बेबी फिल्म्स के साथ, टाइगर बेबी एंड एक्सेल एंटरटेनमेंट के साथ सुपरमैन ऑफ मालेगांव नाम की एक फिल्म अभी हाल ही में पिक्चराइज की है नासिक में, जिसकी तकरीबन कास्टिंग जो है सेकेंडरी टर्नरी वो हमारे एक छोटे शहर से भी हुई है, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादातर एलिट कैरेक्टर्स की रिक्वायरमेंट थी नहीं। तो मुझे जैसे ही डायरेक्शन में से कॉल आया, एक कैरेक्टर की लिस्ट आई, उसके हिसाब से हमने कैरेक्टर ढूंढना शुरू किया।
कैरेक्टर के ऊपर वर्कआउट करते वक्त रीमा कागदी मैम जो इस फिल्म की डायरेक्टर है, उन्होंने कहा था कि ये सब रियलिस्टिक लगने चाहिए और हर एक फेस लाइक वो कोई नॉर्मल एक्टर ना दिखे, वो एक कैरेक्टर दिखे, इस हिसाब से आप उसको ढूंढिए, चाहे वो नॉर्मल वर्कर ही क्यों ना हो, लेकिन हमें वो रियलिस्टिक लगना चाहिए। अब हमने हर छोटे मोटे जगहों में उनको ढूंढना शुरू किया कि अगर आप फेस वाइज अच्छे हो तो आपको एक छोटा सा कैरेक्टर प्ले करना है तो आप रेडी हो। तो उनमें लोगों ने तो हाँ करना शुरू किया, लेकिन उनमें से वो एक्ट पोर्शन निकालना वो भी बहुत ज़रूरी था। उसके लिए काफ़ी समय लगा, लेकिन जैसे हमारी डायरेक्शन टीम एक्सपेक्ट कर रही थी उस हिसाब से हमने उनके इंट्रोडक्शन हो, ऑडिशन हो, उनके प्रोफाइल्स हो, वो बनाना शुरू किया और हमने डायरेक्टर्स के साथ मीटिंग करते वक्त ये सब दिखाया, उनको ये पसंद आया। फिर उन लोगों से Your mic is off. ओके, सॉरी सॉरी। सो अगर किसी, जैसे पल्लवी बोल रही थी कि कास्टिंग करते हुए रियल कैरेक्टर्स को कास्ट किया जाता है, बट जिनके पास कोई नॉलेज नहीं है, टेक्निकल नो हाउस नहीं है, डायरेक्टर को जिस हिसाब से स्किल सेट्स या टैलेंट्स चाहिए, तो वो चैलेंजेस को कैसे ओवरकम किया जाता है? क्या उनको ट्रेनिंग दी जाती है? क्या कास्टिंग डायरेक्शन में या कास्टिंग डायरेक्टर का कुछ रोल होता है, या फिर डायरेक्टर टीम ही उसके बारे में डिसीजंस लेती है? रिसेंटली ना सर, मैं एक प्रोजेक्ट कर रही थी, आई वोंट रिवील द नेम बिकॉज इट्स कॉन्फिडेंशियल, बट जब हम कास्टिंग कर रहे थे ना, तो इट वाज लाइक आर्मी के लिए कास्टिंग थी एंड रिपोर्टर्स के लिए कास्टिंग थी। तो उसमें ना सर, डायरेक्टर वो इतने एक्टिंग को लेके कीन थे एंड मैं भी जब मुझे एक्सप्लेन किया था ना, तभी मुझे भी लगा था कि वो है ना सर, डायरेक्टर्स लोग ऐसे छोटी छोटी चीजें नोटिस करते कि अगर आर्मी अगर सल्यूट कर रहा है तो उनका हाथ यहाँ पे आना चाहिए, कितने सेकंड का पॉज होना चाहिए, कब हाथ नीचे जाना चाहिए। सो इवन इफ इट्स अ नॉर्मल एक्टर ऑल्सो हमको ये सब चीजें देखनी पड़ती है। तो अगर एक कैरेक्टर है ना, तभी भी हमें चीजें देखनी पड़ती है, क्योंकि इन द एंड कभी होता है ना, हम तो चूज कर लेते हैं, बट समटाइम्स ऐसा होता है ना कि हम लेके तो आ जाते हैं एक्टर्स या कैरेक्टर्स को सेट पे, बट जब डायरेक्टर को पसंद नहीं आ जाता है ना, दे आर लाइक कि इसको निकालो, किसी और को लाओ। तो हम पहले ही उतनी मेहनत कर लेते कि हमें डायरेक्टर से कुछ सुनने ना मिले। एग्जैक्टली, पल्लवी वही बात चल रही थी कि जो आपने कैरेक्टर्स का कास्टिंग के बारे में बात की थी, तो काफी सारे चैलेंजेस डायरेक्शन टीम को या कास्टिंग डायरेक्शन टीम को आ सकती है, क्योंकि उनके पास स्किल सेट्स नहीं है, दे आर वेरी रॉ, और रियल मेन स्ट्रीम एक्टर्स नहीं है। उनको डायरेक्टली उनके प्रोफेशन के वजह से या लुक के वजह से या जो कैरेक्टर की डिमांड है, तो इस प्रोसेस में कास्टिंग डायरेक्टर का क्या रोल होता है, या फिर डायरेक्टर का जो टीम है वो ये सारी चीजों के ऊपर वर्कआउट करती है कि उनसे एक्टिंग स्किल्स को डेवलप करना, या फिर जो कैरेक्टर का डिमांड है उस स्किल्स को वो सारे जो कास्ट हुए हैं उन आर्टिस्ट को सिखाया जाए, तो क्या प्रोसेस होता है? पहले तो हमारी कास्टिंग डायरेक्टर और डायरेक्टर के साथ मीटअप होती है। जैसे अभी आपको पता हो कोई सीन है वो करना है पर्टिकुलर, तो डायरेक्टर हमें कुछ रेफरेंस देता है कि जैसे मानो हमारे पास एक गली दिखानी है और उसमें एक फलाना चाचा दिखाने हैं, तो उनकी ये होनी चाहिए और उस हिसाब से उनका बैकग्राउंड ये होना चाहिए। तो आप देखिए कि मैक्सिमम ये फेसेस हमें मिले जो थोड़े रॉ हो, थोड़े रियलिस्टिक हो। अभी हमें ये फेसेस तो मिल जाते हैं, मल्टीपल ऑप्शंस उसमें होते हैं। अभी उनका होता है एक्चुअल बॉडी लैंग्वेज, जो उनको काम करना है उस फिल्म के लिए या पर्टिकुलर उस कैरेक्टर के लिए, क्या वो सही मायने में रेडी है उस हिसाब से करने के लिए। उनकी जो भी नेचुरल एक्टिविटी हो वो हम लोग एक मोबाइल में शूट करते हैं बेसिकली और अपने डायरेक्टर को दिखाते हैं। अगर वो एक्टिविटी या जो रिप्रेजेंटेशन है वो सही जा रहा है, तो डायरेक्टर उसमें कुछ थोड़े बहुत चेंजेस बताते हैं, उसकी थोड़ी रिहर्सल करनी पड़ती है। तो ये जो रॉ कैरेक्टर्स होते हैं वो एक्चुअल अपने स्क्रिप्ट के कैरेक्टर के आसपास मेल जोल खाते हैं। उसके बाद आता है सवाल डायलॉग का। तो बहुत बार होता है कि ये नॉन एक्टर लोग या जो सिर्फ फेस के लिए हम लोगों ने सिलेक्ट किए हैं, वो तो सही मायने में डायलॉग नहीं बोल पाते। तो हमें बीइंग एन कास्टिंग डायरेक्टर उनको कुछ अलग पैंतरे दिखाने पड़ते हैं
कि वो सही से अपना डायलॉग हो या सीन हो वो कर पाए। उसके लिए हाँ, थोड़ी मेहनत तो ज़रूर लगती है, थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन फिर भी वो लोग कर पाते हैं। डेफिनेटली मतलब वो सारा काम मतलब रॉ जो टैलेंट है या रॉ आर्टिस्ट है उसको डेवलप करने की जिम्मेदारी कहीं ना कहीं पे कास्टिंग डायरेक्टर की भी होती है और डायरेक्शन टीम की भी होती है। सो यस। पीपल आप सुन रहे हो मतलब अभी ये भी हम लोग रिवील कर सकते हैं कि ऐसा नहीं है कि आपको एक्टिंग आ रही है मतलब आप एक्टर बनोगे। अगर आपको एक्टिंग नहीं भी आ रही है और कास्ट होते हो तो आपको सिखाया जाएगा, ट्रेन किया जाएगा और आप कैरेक्टर के रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको वो सारी चीजों के इनपुट्स दिए जाएंगे और आपसे काम करवाया जाएगा। और मैंने एक मतलब बचपन से कभी ऐसे भी स्टोरीज सुने हैं काफी सारे दिग्गज जो है बड़े बड़े एक्टर्स की किसी बड़े डायरेक्टर ने या प्रोड्यूसर में रास्ते पे चलते चलते देख लिया और पूछ लिया कि भाई तू मूवी करेगा मेरे साथ। तो आज आज के एरा में क्या आप ऐसा करते हो? डिम्पल मैं जानना चाहूंगा आपसे। टू बी ऑनेस्ट मैंने एक ही बार किया था ऐसा कुछ क्योंकि मुझे है ना एक कास्टिंग मिली थी एंड यू नो दैट कैरेक्टर टू गेट दैट कैरेक्टर इट वाज अ टास्क। मतलब मेरी टीम हम सब मेरे कलीग्स हम सब लगे हुए थे कि यार ये कैरेक्टर कहीं से मिल जाए ये कैरेक्टर कहीं से मिल जाए एंड इट इट वेंट 2 वीक्स 3 वीक्स बट हमें वो कैरेक्टर ही नहीं मिल रहा था। एंड वन डे मी एंड माई कलीग वॉज ट्रैवलिंग इन द लोकल एंड एक यू नो जो वो बेचने वाले आते हैं कुछ ना कुछ चीजें बेचते थे एंड देयर वाज दैट गाय हुँ। ही वाज डूइंग दैट एंड सडनली हमारे दोनों के माइंड में ऐसा क्लिक हुआ अरे हम 3 वीक से जो कैरेक्टर ढूंढ रहे थे ये तो वही है करके। एंड देन आई वाज लाइक कि लेट्स डू वन थिंग ये जहाँ पे स्टेशन पे उतर रहा है ना हम भी वहाँ उतर जाते और हम इससे बात करते। तो हम लोग ने जब बात की ना तब उसने हमने सामने से ही बोल दिया कि मुझे एक्टिंग का बहुत शौक है ये वो। तो फिर वी गेव हिम द चांस हम लोग ने उसका नंबर लिया उसे गाइड किया थोड़ा सा एक्टिंग में इधर उधर था बट स्टिल हम लोग ने उसको इम्प्रूव कर किया एंड देन उसको कैरेक्टर दे दिया। सो हाँ वंस आई डिड इट। एग्जैक्टली पल्लवी व्हाट इज अबाउट यू? आपने कुछ किया था ऐसा? बहुत बार ऐसा हुआ है। अभी हमारे तरफ बहुत सारे प्रोजेक्ट उसी का रेफ़रेंस लेके आते हैं। लॉकडाउन में हमने जामतारा 1 का शूटिंग किया था, तो डेफ़िनेटली जामतारा 2 के कुछ सीन के लिए भी वो यहाँ पर ही आए थे। तो उनका रेफ़रेंस भी वही था कि आपने जामतारा 1 देखी है, वैसे ही कैरेक्टर्स हमें 2 में चाहिए। एक्चुअली वो टीम थोड़ी अलग हो गई थी, उनको पता नहीं था कि 1 के लिए भी हमने ही बहुत सारे कैरेक्टर्स की कास्टिंग की थी। तो हाँ, ये होता है। जैसे अभी सुपरमैन ऑफ मालेगांव की एक फ़िल्म आ रही है, तो उसमें भी ऐसा है कि एक गली और एक मोहल्ला दिखा है, तो उसमें रियल वर्क करने के लिए कैरेक्टर्स चाहिए थे, जिसमें कोई साइकिल वेंडर वाला है, कोई अपने तरीके से बेचने वाला है, कोई सैलून वाला है। तो रियल एक्टर्स जो है, वो ये करने में हिचकिचा रहे थे, तो हमने बहुत सारी शॉप ऐसे ढूँढी, जहाँ पे लोग एक्चुअल काम कर रहे हैं। फिर उनका वीडियो बना के इन एक्टर्स को दिखाया, लेकिन वो फिर भी उतना फाइन नहीं था जो ये रियल वर्कर्स कर रहे थे। तो जो-जो चीज़ें हैं, जो कैरेक्टर वाइज़ होनी चाहिए थी, तो हमने ये रियल लोगों को उठाया है, इनको थोड़ा ग्रूम किया है और हाँ, इनकी तरफ से थोड़ी बहुत अच्छी एक्टिंग भी हमने निकाली है। इस तरीके से वो कैरेक्टर हाँ, धीरे-धीरे डेवलप होते गए हैं। एग्जैक्टली मतलब लोगों के लिए अपॉर्चुनिटीज हर जगह पे है। आप सही टाइम पे सही जगह पे सही लोगों के साथ अगर मिलोगे या फिर इंटरेक्ट होगे तो आपके लिए इंडस्ट्री के दरवाजे खुले रहेंगे हमेशा। और मैंने देखा है कि हाल फिलहाल वो थोड़ा हीरो काइंड ऑफ इमेज, यू नो, बिगर देन द स्क्रीन वाला इमेज वो कहीं पे कम हुआ है एंड द कोर कंटेंट ऑफ द फिल्म मेकिंग के ऊपर ज्यादा फोकस हुआ है जस्ट बिकॉज ऑफ द ओटीटी सीरीज एंड द कॉम्पिटेटिव मार्केट एंड द क्रिएटिव फ्रीडम गिवन टू द क्रिएटिव क्रू। तो ये काफी इंपॉर्टेंट हो चुका है तो इसीलिए आर्टिस्ट को मतलब एक्टर्स को स्पेसिफिकली काफी सारे अपॉर्चुनिटीज मिल रहे हैं कि इंपॉर्टेंट नहीं कि आपका हीरो वाला लुक हो या हीरो वाला बॉडी शेप हो। तो ये काफी एक ड्रास्टिक चेंज हमने अभी कुछ पिछले सालों में देखा है। सो व्हाट इज योर थॉट अबाउट दिस? मतलब अभी करंट सिनेरियो में इस चीज को आप कैसे देखते हो? डिम्पल विल स्टार्ट विद यू। फॉर मी ना पहले तो मेरे लिए सबसे बड़ा एक टास्क होता था बिकॉज आई हैव डन अ लॉट ऑफ कास्टिंग फॉर म्यूजिक वीडियोस। सो ये जो इन्फ्लुएंसर्स और जो अच्छे एक्टर्स होते हैं ना
इनके बीच में भी एक बहुत बड़ा कॉम्पिटिशन चलता होता है। और इवन भी हम अगर वेब सीरीज़ की भी कास्टिंग करते हैं ना, तो वेब सीरीज़ में बहुत लोगों को चांसेस मिलता है, जो बहुत अच्छे एक्टर्स हैं, तो उनको वहाँ पे बहुत अच्छे चांसेस मिलते हैं कि ऐसा नहीं है कि बहुत बल्क बॉडी चाहिए या इतना गुड लुकिंग होना चाहिए, दे नीड दिस फेस और दैट फेस। उनको ऐसा है ना कि नहीं, उनकी एक्टिंग अच्छी चाहिए। मैंने मोस्टली वेब सीरीज़ में देखा है, वो लोग मेन चीज़ हमेशा एक्टिंग देखते हैं। बाकी सब चीज़ों में मैंने देखा है ना कि इसके कितने फॉलोवर्स हैं, फॉलोवर्स के बेसिस पे किसी-किसी को काम मिलता है। बट वेब सीरीज़ एक ऐसी चीज़ है ना कि नहीं, वो लोग एक्टिंग देखते हैं, वो लोग देखते हैं कि हमारे कैरेक्टर में बैठ रहा है, तो नहीं, दिस पर्सन विल ओनली गेट कास्टेड। वो लोग फॉलोवर्स एंड ऑल नहीं देखते। बट स्टिल मुझे कहीं न कहीं लगता है ना कि ये जो इन्फ्लुएंसर्स और एक्टर्स के बीच का जो कॉम्पिटिशन है ना, वो कहीं न कहीं थोड़ा खत्म हो जाना चाहिए, बिकॉज़ उसके वजह से ना जो बहुत अच्छे एक्टर्स हैं, जो गुड लुकिंग भी है, बस जस्ट बिकॉज़ उनके फॉलोवर्स नहीं हैं, तो उनको काम नहीं मिल रहा। बिकॉज़ अभी देयर आर सम एक्टर्स हू आर वेरी ब्यूटीफुल, उनके फॉलोवर्स नहीं है, बट अगर उनको म्यूज़िक वीडियो, मतलब कैसा होता है ना, कुछ-कुछ मॉडल्स लोग को सिर्फ़ म्यूज़िक वीडियो करना होता है। उनको एक्टिंग नहीं आती है। बट जस्ट बिकॉज़ ऑफ फॉलोवर्स वो लोग वो भी नहीं कर पाते। जस्ट बिकॉज़ इन्फ्लुएंसर्स लोगों के पास बहुत हाँ, आई नो इन्फ्लुएंसर्स लोग भी बहुत मेहनत करते हैं, बट एक जो एक्टर और मॉडल एक्सप्रेशन देता है, वो एक इन्फ्लुएंसर नहीं दे पाता है। क्योंकि हम जब म्यूज़िक वीडियोज़ में इन्फ्लुएंसर्स को लाते हैं, तो एक टाइम के बाद वी हैव टू टेल देम कि हमें ये एक्सप्रेशन चाहिए या ये चाहिए, और वो लोग नहीं ला पाते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है मोस्टली एक्टर्स लोग को वेब सीरीज़ में ज़्यादा ट्राई करना चाहिए, क्योंकि वो लोग बहुत ज़्यादा एक्टिंग को लेके ध्यान देते हैं। क्योंकि मैंने बहुत सारी वेब सीरीज़ में एज़ एन फ्रीलांस कास्टिंग की है, तो मुझे पता है वो लोग कितनी मेहनत करते हैं एक एक्टर को ढूँढने के लिए, और हमें भी मेहनत करवाते हैं। एग्जैक्टली exactly. मतलब काफी सारे अलग अलग डाइवर्सिफाइड एक्सपीरियंस है आप दोनों के, आपके प्रोजेक्ट वेरिएशन से, और वो यही हम लोग चाहते थे कि एक अलग अलग सेगमेंट से और इंडस्ट्री से, और जैसे आपने कहा कि इन्फ्लुएंसर्स को भी कास्ट किया जाता है, और स्पेसिफिकली अभी कुछ सालों से ये ट्रेंड काफी बड़ा है कि इन्फ्लुएंसर्स को फॉर द एड्स लिया जाता है, उनके फॉलोअर्स देख के या फिर टैलेंट देख के भी, दोनों चीजों का कंसिडरेशन होता है। समटाइम्स वैसे ही है कि रॉ आर्टिस्ट को आपने कास्ट किया लेकिन उसके ऊपर काम करना जरूरी है, उसी तरीके से आपने इन्फ्लुएंस को कास्ट किया है बट उसके पास वो टैलेंट नहीं, तो उसको भी आपको पॉलिश करने की जरूरत पड़ सकती है। विल कम टू द रियल थिंग कि एस्पिरेंट आर्टिस्ट को अगर काम करना है तो कहाँ से शुरू करें, कैसे शुरू करें, और इंडस्ट्री में सक्सेसफुल करियर पाने के लिए क्या कर सकते हैं? विल स्टार्ट विद पल्लवी। ये बहुत अच्छा टॉपिक है। बेसिकली क्या है, एक्टर को कोई भी हो तो उसे उसकी ट्रेनिंग लेनी ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि मैं ये सोचती हूँ, आपका शॉर्ट टर्म में अगर आपका अच्छा फैन फॉलोअर है, आपके गुड लुकिंग से आपके रील्स ज़्यादा वायरल हो रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आप लॉन्ग टर्म चलने वाले हो। एक एक्टर को अपने साथ बहुत सारे वेपन्स लेके आज चलना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आज कॉम्पिटिशन बहुत है। आपकी ऑडियंस आज आपको नहीं देख रही है, आपके कंटेंट को देख रही है। तो बेसिकली आज आपकी रोम-कॉम हो, स्काई-फाई हो, साइको थ्रिलर हो, हर एक टॉपिक के ऊपर आज फ़िल्में बन रही है, वेब सीरीज़ पे अलग-अलग टॉपिक पे डॉक्यूमेंट्रीज़ आ रही है। तो आपको उसके लिए तैयार होना बहुत ज़रूरी है। एक एक्टर को बस एक्टिंग नहीं, बाकी के एस्पेक्ट्स भी आना बहुत ज़रूरी है। उसके साथ उसकी प्रोफाइल बहुत स्ट्रॉन्ग हो, कि वो एक्टिंग में भी मास्टर है, स्पोर्ट्स में मास्टर है, या किसी और चीज में जिसकी उसकी जिज्ञासा बहुत है, तो उसमें वो ट्रेंड है, तो वो ज्यादा हद तक टिक पाएगा। उसके अलावा आप अभी जैसे आपकी कास्टिंग टीम है या आपका एक अच्छा पेज है, इसके थ्रू आप लोगों से कांटेक्ट कर पा रहे हो, तो ऐसे एजेंसी से आपके कॉन्टैक्ट्स अच्छे होने चाहिए, ताकि मैं एक्टर अच्छा हूँ लेकिन मुझे वे नहीं मिल रहा है कि मैं कहाँ पे अप्रोच हूँ। तो हम जैसे कास्टिंग टीम वाले, आप जैसे अच्छे ग्रुप के लोगों को जॉइन होते हैं, उनके ज़रिए से हमें ये डेटा मिलता है और हम इसे यूज़ करते हैं आगे के प्रोजेक्ट्स के लिए। तो लोगों ने अपने आप को इन सारे प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर अपने आप को आज़माना चाहिए, इनके साथ अपने कॉन्टैक्ट्स बनाए रखने चाहिए, ताकि आगे चल के ये काम आगे बढ़ता ही रहे और इनको अच्छे-अच्छे प्रोजेक्ट्स मिलते रहें। ओके, दैट वाज रियली वंडरफुल। डिंपल, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि अभी द रियल फैक्ट अबाउट द इंडस्ट्री, कि पैसा कितना बनता है या पैसा कितना मिलता है और कैसे मिलता है? क्या मुझे कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ता है? कॉन्ट्रैक्ट कैसे होता है? मुझे पैसा कितना मिलता है, कब मिलता है? क्या मैं टाइम जो है हमारा,
वो टाइम कैसे दे पाऊंगा अगर मैं कुछ प्रोफेशन में हूँ, काम कर रहा हूँ, तो ये सारी चीजें कैसे वर्कआउट होती है इंडस्ट्री में? बट उसके पहले ना मुझे एक चीज़ बोलनी है, लॉट ऑफ एक्टर्स एंड जो लोग मेरे पास आते हैं ना, वो लोग मुझसे हमेशा एक सवाल करते हैं, मैम मैं कौन से इंस्टीट्यूट में जाके एक्टिंग सीखूँ, मैं क्या करूँ, मैं कैसे अपना वे चुनूँ। एंड अभी रिसेंटली क्या हुआ था ना, देयर आर लॉट ऑफ स्कैम्स गोइंग ऑन इंडस्ट्री, स्पेशली इन मुंबई। ये रिसेंटली मेरे साथ भी हुआ और बहुत हमारे कलीग्स के साथ भी हुआ। तो ये एक मैं सिर्फ एक बोलते हैं ना, हेल्प करना चाहती थी फॉर फ्यू एक्टर्स, स्पेशली फॉर फीमेल्स, कि ये लोग बहुत ऐसे बड़े-बड़े प्रोजेक्ट्स दिखाते थे, क्लेम दैट देयर आर वेरी बिग कास्टिंग डायरेक्टर्स, बट ऐसा कुछ होता नहीं है। आपको पता होना चाहिए कौन जेन्युइन है, कौन नहीं है, बिकॉज़ क्या होता है ना, इतने सारे स्कैम्स बैठे हुए इंडस्ट्री में कि आप कौन से रॉन्ग पाथ में चले जाओ और वो आपको कैसे मिसगाइड कर दें ना, आपको पता भी नहीं चलेगा। बिकॉज़ मैंने देखा है लोग बहुत छोटी-छोटी उम्र में एक्टिंग करना स्टार्ट कर रहे हैं विद दैट पेरेंट्स रेफरेंस और व्हाटएवर, बट स्टिल कुछ लोग कास्टिंग डायरेक्टर्स होते हैं जो फेक है स्पेशली, तो वो लोग कभी भी मिसगाइड कर सकते हैं। तो ये चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखें। एंड जो लोग मुझे बोलते हैं ना कि मैम इंस्टीट्यूट करूँ या थिएटर करूँ, आई विल प्रेफर कि आप इंस्टीट्यूट से ज़्यादा थिएटर करो, क्योंकि ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। मैंने इंस्टीट्यूट से सीखी थी, कुछ हुआ नहीं मेरा, जब जाके मैंने थिएटर से सीखी तब जाके मैंने एक्चुअल एक्टिंग को मैंने लर्निंग स्टार्ट की, अभी भी मैं सीख ही रही हूँ। तो यू कैन और बात करें, आपने मुझे इसकी बात की ना कॉन्ट्रैक्ट की, राइट? अबाउट मनी। एग्जैक्टली। हाँ, सो एग्जैक्टली। समटाइम हैपेंस, इफ एड्स की बात करूँ मैं, जब हम एड्स की कास्टिंग करते हैं, तो हमको या तो ऑन द डे पेमेंट हो जाता है या तो वेरी नेक्स्ट डे पेमेंट हो जाता है, ओके? आजकल मैंने अभी तक, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैंने आज तक जितने भी प्रोजेक्ट्स किए हैं, मैंने कभी भी डेली सोप में अपना नहीं हाथ डाला। बिकॉज़ कैसा होता है ना सर, डेली सोप में पेमेंट बहुत लेट आता है। हमारा खुद का भी लेट आता है और एक्टर्स का भी लेट आता है। दे हैव टू वेट फॉर 3 मंथ्स। एंड ओह। सर कैसा होता है ना, 3 मंथ्स में हम भी भूल जाते हैं। 3 मंथ्स में हम एग्जैक्टली। भी भूल जाते हैं कि हमने वो काम किया था या नहीं किया था। तो हम्म। एड्स हो गए, म्यूज़िक वीडियोज़ के हमें ये मिलते हैं, एडवांस मिलते हैं। हमें एक्टर्स को भी देना पड़ता है एडवांस और हमें खुद को भी मिलते हैं। तो मुझे सबसे अच्छा सोर्स यही लगता है कि एडवांस पेमेंट में एक आ जाता है कि हाँ, दिस वर्क इज़ गोइंग टू गेट हैपन। फिर एड्स के पेमेंट भी अच्छे होते हैं, एक शॉर्ट पीरियड ड्यूरेशन भी होता है उनके शूट का। तो एड्स बट डेली सोप आई नेवर पुट माय हैंड्स इनटू दैट, बिकॉज़ 3 मंथ्स वेट करना फॉर पेमेंट इज़ अ टास्क। बट हाँ, जो बहुत ऐसे कीन है एक्टिंग के बारे में, दे वांट टू स्टार्ट देयर जर्नी इनटू एक्टिंग, देन दे कैन डू डेली सोप्स। सो एक अच्छा है, बट हाँ ठीक है, आपको उतना वेट भी करना पड़ेगा। आपको ये रियलिटी है कि आपको 3 मंथ्स वेट के बाद ही पेमेंट मिलेगी। नो एडवांस, नथिंग। एंड कभी-कभी तो ऐसा होता है ना सर, 12 बजे फ़ोन आ जाता है। यू गेट कॉल एट 12 o'clock कि आपको ये कैरेक्टर प्ले करना है, आपको सुबह आना है। मतलब इफ हम्म। कभी-कभी ऐसा होता है ना, सम एक्टर्स दे गिव अस द कमिटमेंट कि हाँ मैम हम शूट पे आएँगे, बट उनको पेमेंट ज़्यादा वाला शूट मिलता है ना, दे आर लाइक मैम हम नहीं आ रहे, हम दूसरे सेट पे जा रहे हैं। मुझे एक एंड वो नंबर पेमेंट जानना मुझे एक नंबर जानना था, आगे के सेशंस में भी कितना पेमेंट मिलता है? बिकॉज फॉर एड्स, हाँ, मतलब क्या सेगमेंट कर सकते हो या कैसे पेमेंट्स, डेली पेमेंट्स कितना ऑन एन एवरेज हो सकता है फॉर अ अच्छा न्यूबीज? फॉर कैरेक्टर इन दिस डेली सोप्स ना, जो लीड और सेकंड लीड उनके पेमेंट्स बहुत अच्छे होते हैं। बट ये जो कैरेक्टर्स, जो साइड कैरेक्टर्स प्ले करते हैं ना, उनके होते हैं सर कभी 7,000, कभी 6,000। उसके भी बीच में सर कोऑर्डिनेटर्स होते हैं जो कमीशन लेते हैं, एंड एग्जैक्टली। या समटाइम्स कैसा होता है ना, कुछ कोऑर्डिनेटर्स बोलते हैं कि आई एम गोना डिडक्ट 25% इफ आई एम गिविंग यू वर्क। मैं तुम्हें काम दे रहा हूँ, 25% मैं कट करूंगा। कुछ लोग क्या करते, डायरेक्टली कट करके बताते थे कि ये पेमेंट है। तो इन कैरेक्टर्स वालों का होता है 6,000, 7,000। जब उनका और प्रोफाइल अपग्रेड हो जाता है तो उनके पेमेंट्स बढ़ जाते हैं। जैसे जैसे एक्सपीरियंस बढ़ता है वैसे वैसे आपकी पेमेंट बढ़ने लगती है। बट सर कुछ लोग है ना, इतने कीन होते हैं ना एक्टिंग के बारे में, कि अगर इतने एक्सपीरियंस के बाद भी उनको कम बजट मिल जाता है ना, वो लोग कर लेते हैं। कुछ लोग नहीं करते, बट कुछ लोग कर लेते हैं। एड्स की पेमेंट बहुत अच्छी होती है। इट इज लाइक 30,000, 40,000 पर डे फॉर वन कैरेक्टर। एग्जैक्टली। एग्जैक्टली। एंड म्यूजिक वीडियोस तो आई वुड रियली से, अभी म्यूजिक वीडियोस का एक ट्रेंड आ गया है कि दे नीड इन्फ्लुएंसर्स।
एंड इन्फ्लुएंसर्स दे चार्ज लाइक 1,80,000, 1,20,000, तो उनके चार्जेस वो रहते हैं। ग्रेट ग्रेट, मतलब ये जानकारी जो है वो एस्पिरेंट्स के लिए लेजिट सोर्स से मिलना काफी इंपॉर्टेंट है, जो पता नहीं होता है। और काम कैसे करना है, क्यों करना है, एक मोटिवेशन होता है फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना, और फाइनेंशियली भी उसको रिमर्स मिलना, ये काफी इंपॉर्टेंट चीज होती है। पहले जूनियर आर्टिस्ट की पेमेंट, जब मैंने इंडस्ट्री में आई थी, जूनियर आर्टिस्ट की पेमेंट थी 500। आज सर हम जूनियर आर्टिस्ट को 3,000, 4,000, 5,000 देते हम जूनियर आर्टिस्ट को। ओह ओके। अब कैरेक्टर पेमेंट्स भी बढ़ गई है। अभी हमें 10,000, 12,000। टॉकिंग अबाउट द फॉरेनर्स, इफ दे आर डूइंग कैरेक्टर ऑल्सो, कैरेक्टर ही कर रहे, तभी भी हम उनको 20,000 देते हैं, क्योंकि उनकी रेट्स उतनी बढ़ गई है। एग्जैक्टली। पल्लव, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि फाइनेंशियली तो ये सारी चीजें होगी, कुछ लीगल फॉर्मेलिटीज होते हैं। लीगल फॉर्मेलिटीज मतलब जैसे कि कॉन्ट्रैक्ट करना, या किसी प्रोजेक्ट के लिए बाउंड करना, या फिर कोई नया एक्टर है जिससे शायद असाइनमेंट मिला है किसी कास्टिंग एजेंसी से, तो उसने 1 2 3 4 ऐसा क्या लिस्ट है जिसको चेक मार्क कर सके कि ये सारी चीजें देख के फिर वो कमिटमेंट दे या कॉन्ट्रैक्ट साइन करे, तो ऐसी कौन सी चीजें हो सकती है? बहुत सारी चीजें हैं। पहले तो ये जैसे अभी डिम्पल जी ने बताया कि आप जिसके थ्रू काम कर रहे हो उसका पहले तो बैकग्राउंड चेक करिए कि कहीं वो आपको जो दिखावा दिखा रहा है वो सच में है भी या नहीं, उसने उतने सारे प्रोजेक्ट्स किए भी है या नहीं, या फिर वो जिस कंपनी के बारे में बोल रहा है, जिस प्रोडक्शन हाउस के बारे में बोल रहा है, वाकई उनका कोई प्रोजेक्ट है कि नहीं है। बहुत बार ऐसा होता है ना कि लोग बताते हैं कि यार आपका ये कार्ड नहीं है। जैसे मुंबई में हर एक सेट पे आपको काम करने के लिए अपने यूनियन का कार्ड होना जरूरी है। अपने छोटे मेट्रो सिटीज में अभी तक तो ये नहीं है यूनियन, लेकिन शायद बहुत जल्द ये रेशो जैसे बढ़ रहा है अभी सीरियल्स का हर एक सिटी में, तो ये अपने सिटीज में भी बहुत जल्द आएगा। तो आपका ये अगर कार्ड है तो आप सेट पे आ सकते हो, अगर कार्ड नहीं है तो आपका कार्ड बनवा देंगे। तो पहले ये चेक कीजिए कि वो जो कार्ड बोल रहा है वो एक्चुअली है भी या नहीं वैलिड। जैसे मुंबई में 2 से 3 इंस्टीट्यूट है जिनके कार्ड आपके पास हो तो आप बेसिकली कहीं पे भी काम कर सकते हो, लेकिन अगर नहीं है तो आप वो चेक कीजिए। उसके बाद उस कंपनी का जो प्रोजेक्ट है वो एक्चुअली क्या है, जैसे वो सीरियल है। वो इंस्टीट्यूट कौन से है? जैसे आपने वो कहा कि 2 इंस्टीट्यूट्स है कि जो बहुत है, लेजिट जैसे है। सिंटा बहुत नोन है, इंडियन फिल्म कौन सा? टेलीविजन एसोसिएशन, सिंटा। सिंटा इज देयर, सिग्मा। शिवसेना इज देयर, ओके यस, ओके ओके। ये बट नोन है सिंटा इनकी इज फॉर द मोर वेबसाइट। एक्सपीरियंस्ड पर्सन। हाँ, सिंटा ऑलराइट। जो है वो बड़े एक्टर्स के लिए है, जो ज़्यादा काम कर चुके, तो उसकी फ़ी भी उतनी है, लेकिन उसका फ़ायदा भी उतना है कि आपके पेमेंट अगर देने में कोई कंपनी दिक्कत दे रही हो, तो कंपनी आपको सिंटा आपको डेफ़िनेटली हेल्प करती है। आपके सेट पे कोई इश्यू हो, जैसे अभी आपने बोला कि एक शिफ्ट है, जो बहुत लेट नाइट खत्म हुई और सेकंड डे उसको मॉर्निंग में भी जाना है, लेकिन एक्टर ने मना ही कर दिया है, तो वो कंपनी और एक्टर के बीच में अगर कुछ प्रॉब्लम है, तो ऐसे छोटी-छोटी चीज़ें वो सॉल्व करने में आपको हेल्प करती है। और भी बहुत सारे इश्यू जिसमें आपको ये कंपनियां हेल्प करती है। तो ये आपके पास ये चेक कर लो कि इनके कार्ड वैलिड है या नहीं, ताकि मैं इनको कार्ड बनाने के लिए पैसे दूं या अपने आप से बनवा लूं, जो कि इनके साइट पे दिए होते हैं, आप डायरेक्टली इनके कार्ड्स निकाल सकते हो। उसके बाद आता है आपके साथ जो इनका कैरेक्टर डिसाइड हुआ है, उस हिसाब से आपको कंपनी ने मेल किया है। मेल अगर किया होगा तो उसमें ये ज़रूरी लिखा है कि आपको कौन से डेट पे शूट है, तो आपका कितना उसका अमाउंट कितना बनता है, और वो सब वाक़ई कंपनी वालों ने ही भेजा है, इसका एक प्रूफ आपके पास होता है, ताकि आगे चल के कंपनी ना बोले कि हमने आपके साथ ये तो डिसाइड ही नहीं किया था। तो जो मेन कैरेक्टर्स होते हैं, तो उनके लिए ये कंपनी की तरफ से ऑफ़िशियल मेल, व्हाट्सएप हो या उनका कॉन्ट्रैक्ट हार्ड कॉपी हो, ये ज़रूर साइन किया ही जाता है। दैट्स रियली वंडरफुल। काफी सारी चीजें जो पता ही नहीं है, मतलब एस्पिरेंट्स के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। सेशन काफी इंटरेस्टिंग चल रहा है, बट आई रियली वांट टू अपोलोजाइज यू, क्योंकि नेक्स्ट सेशंस भी है। और मतलब शर्मा जी आ रहे हैं, अक्षत शर्मा, जो हड्डी फिल्म के डायरेक्टर है, जिनका अभी रिसेंटली रिलीज हुआ है, तो उनका नेक्स्ट सेशन है। सो मैं रियली दिल से आपसे क्षमा मांगना चाहूंगा, थोड़ा सा टाइम कम है, लेकिन मैं आपसे जुड़ने वाला हूँ फिर से। ये तो श्योर है कि वी आर गोइंग टू हैव अ लॉन्गर काइंड ऑफ अ सेशन। ये तो कंप्लीट समिट हमने प्लान किया है, बट कुछ हम लोग एक्सक्लूसिव सेशंस भी करेंगे, वीकेंड टू वीकेंड और समथिंग लाइक दैट, जहाँ पे हम लोगों का मोर टाइम होगा,
लीडर होगा जहाँ पे हम लोग ये सारी चीजें कर सकते हैं। एक छोटा सा स्टेटमेंट जस्ट लाइक फॉर्मूला और गुरु मंत्र फॉर द एस्पिरेंट एक्टर, दोनों तरफ से। डिम्पल। फॉर मी नहीं, पहले पल्लवी जी बोलेगी फिर मैं बोलूंगी। ऐसा कुछ नहीं है, पॉजिटिव रहिए। आप जिस काम के लिए फोकस कर रहे हो वो तो आपको मिलेगा ही, उसके लिए आप ट्रैक मत चेंज कीजिए। और दूसरा, कॉस्मो पीपल जैसे ग्रुप से आप जुड़े रहिए, आगे की बहुत सारी जानकारी आपको मिलती ही रहेगी। थैंक यू पल्लवी। यस डिम्पल। ओके, फॉर मी मेरे साइड से मैं यही बोलूँगी, बी पॉजिटिव, ट्राई टू मेक अच्छे कॉन्टैक्ट्स बनाओ कास्टिंग डायरेक्टर्स के साथ, क्योंकि वो आपको बहुत अच्छे प्रोजेक्ट्स देंगे। और तीसरी चीज़, जस्ट डोंट स्टिक, एक ही चीज़ में स्टिक मत रहो। जैसे मुझे भी मेरी लाइफ ने बहुत डेस्टिनी में अच्छी-अच्छी चीज़ें दिखाई है, माइट भी आपको भी कहीं और लेके जाए। अभी आई एम ग्रो कर रही हूँ मैं पोजीशन वाइज़, क्या पता आप एक्टर से ज़्यादा, क्या पता प्रोड्यूसर बन जाओ, डायरेक्टर बन जाओ। और कुछ लोगों को ये भी बताना चाहूँगी कि लोगों को फ़िल्म एंड टेलीविज़न का भी एक कोर्स है, अगर वो भी है मुंबई में, इफ दे कैन ट्राई दैट, तो बहुत चीज़ें एक्सप्लोर करने के लिए भी मिल जाएगी। या दैट्स इट। सो थैंक यू सो मच आप दोनों गेस्ट के लिए, आपने जो इंसाइट्स दिए। हम डेफिनेटली कांटेक्ट करेंगे आपसे, फिर से जुड़ेंगे, फिर से इंटरेस्टिंग टॉक करेंगे, सारी इंफॉर्मेशन लोगों तक पहुंचाएंगे, जिससे कि जो नेक्स्ट जनरेशन है वो काफी अच्छे आर्टिस्ट लेके आए। इंडस्ट्री को नेक्स्ट जनरेशन ऑफ स्टार्स की जरूरत है, और काफी अच्छा वो करियर बना सके। इसके लिए हम लोग डेफिनेटली हेल्पफुल रहेंगे सारे लोगों के लिए। सो थैंक यू सो मच बोथ ऑफ यू। थैंक यू। थैंक यू। Cosmo People, helping change. Celeb Rise, Talent Management.